Students, welcome you to the new video, and in this video we would like to read the chapter of class 8, chapter number 1 of civics. The chapter name is the Constitution of India. Okay students, the Constitution of India. In NCERT book the chapter name is given the Constitution, and in private book the Constitution of India. Students, the chapter is a long chapter and too many headings are there, so the video may be long. Okay, but don't worry, I would like to cover every single heading, every single topic and every single detail in my video. Okay, so students, let's start the video today. So students, let's understand first of all that what is constitution. Student, I would like to provide you a very simple example, and through the example I would like to explain you what is constitution. Just suppose you are a student. Okay, you read in a school, you take study in a school, you read in a school. So in school there are some certain discipline, some certain rule and regulation, and without following the rule and regulation you are not to be a part of the school. Okay, are you agree with or not? Okay, so same things, if a student have to follow the rules of some certain school and colleges, so in the same way the citizens of India or citizens of any country, just suppose I am the citizen of India, so if the student have to follow the rule and regulation of a college or of a school, so in the same way the people of India, the citizen of India should have to follow some rule of India. Okay, so the set of rule which we follow are said as constitution. So here is, I would like to define constitution. Constitution is the supreme law which determines the relationship among people and the government. Okay, just suppose Indian government are there, so who will make the relationship, who will make the trust, who will develop the trust between the people of India and between the government of India? So it is the constitution who will make a bridge, who will make a medium, who is a mediator. The Constitution of India is a mediator between the government of India and between the common people of India. Okay, without the relation between people and government, a state or a nation cannot be run. Okay, हमारे यहाँ कुछ, जैसे कि आपको देश में रहना है तो कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ेगा. आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल के लॉ को फॉलो करते हैं, आप अगर वकील हैं तो आप कोर्ट के लॉ को फॉलो करते हैं. वैसे अगर इंडिया का एक सिटीजन है, एक वहाँ के लोग हैं, तो ऐसा नहीं दैट पीपल डू वॉट एवर दे वांट, पीपल विल डू वॉट एवर दे वांट. जो लोग चाहेंगे वो नहीं कर सकते. देर आर सम सर्टेन रूल्स रेगुलेशन, देर आर सम फैक्टर्स, देर आर सम फैक्ट, देर आर सम पावर्स विच वी हैव टू एग्री विद दैट. If we would like to make a good society, if we would like to make a free and flow society, a peaceful society, so for peaceful society, for peaceful nation, we have to follow some rule and regulation, and the rule and regulation is applied to all the countrymen of India, to all the citizens of India. So such a set of rule, such a collective rule is called constitution. Let's move toward the next heading, and that is role of constitution. Okay, what is the role of a constitution in any country? Just suppose Constitution of America, Constitution of Britain, Constitution of Pakistan, Constitution of India. So how does a constitution performs, and how does the constitution manage all the rules and regulation in a country? Okay, so that is called role of constitution in any country. So here we are reading about India, we are reading the Indian constitution. So what is the role of Indian constitution in our country? The first role of constitution is that it's generate a degree of trust and coordination among the people of Indian government. Okay, so the first role of constitution is to generate a degree of trust. It means belief and coordination. Okay, just suppose we are living in a society. If we do not help each other, so how can a society run? Okay, so there should be a coordination, there should be a friendship, there should be a unity between societies, there should be unity between people to people. All people should respect all people should help all people. So that is called coordination, and that is called trust. So it is the duty of our constitution that our constitution would like to prefer and would like to fix the degree of trust
the degree of belief, and the coordination factor between the people and the government. In a democracy, in a constitutional country, people should help government and government will work for the people. लोग गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को चुनते बनाते हैं, और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों की भलाई के लिए बहुत प्रकार के काम करती है. So if we are not going to help our government and constitution, so there should be no society in the world. हमें हेल्प करना चाहिए, हमें कोऑपरेट करना चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको कोऑपरेशन करने का, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने का, एक दूसरे को बराबर स्थान देने का, कोऑर्डिनेट करने का, सहयोग करने का, ये जितना भी आपका फंडा है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, और इन सब का प्रोटेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की है और पीपल ऑफ इंडिया पे है, भारत में रह रहे लोगों की है कि वो कोऑर्डिनेशन आपस में बना करके रखें. एंड द सेकेंड इज दैट इट कंट्रोल्स एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, कंट्रोलिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट and limiting power of the government is the key feature of a democratic country and of a constitution. Constitution will decide that how government should be formed and how government will work. There should be a pattern of government working. Government cannot work according to their choices or according to their preferences. There have to fix mandatory and fixed rules and regulation that how government will work for the country, government will work for the पीपल ऑफ देयर कंट्री. गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, इसका एक सिस्टम होता है, वो सारा सिस्टम आपको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तय करता है. गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट में कितने लोग शामिल होंगे, मिनिस्ट्री कैसी रहेगी, ब्यूरोक्रेसी कैसे रहेगी, पुलिस मेंटेनेंस कैसा रहेगा, सोशल ऑर्डर कैसा रहेगा, लॉ कैसा रहेगा, कानून कैसे रहेंगे, ये सब डिसाइड आपका हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है और कर दिया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिसाइड किया है उसी पैरानॉर्म्स के आधार पे, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, उसी रूल और रेगुलेशंस पे, उसी एक्ट पे, ठीक है, गवर्नमेंट को वर्क करना होता है. गवर्नमेंट अपने मन से या मनमानी ढंग से कुछ ना कर सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कंट्रोल्स एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट. ओके, एंड द थर्ड इज इट स्पेसिफाइज हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. अब इसका देखिए, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा, गवर्नमेंट के क्या क्या पार्ट होंगे, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट कैसे रन होगा, ये सारे सिस्टम, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है. इसके हिसाब से इंडिया में गवर्नमेंट कोई सेलेक्ट होगी तो वो वोटिंग करके सेलेक्ट होगी, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट टू वोट दिया हुआ है कि आप वोट कर सकते हैं और अपने मर्जी के मुताबिक अपने मनमाफिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं या इलेक्ट कर सकते हैं. या ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से आपका गवर्नमेंट बनती है, मनमाने ढंग से आपका इलेक्शन होता हो. इलेक्शन में फेयर एंड फाउल आपको मौका दिया जाता है, सभी पार्टियों के बराबर के मौके दिए जाते हैं, ठीक है, मनपसंद चुनाव चिन्ह लेने के लिए, मनपसंद वर्क करने के लिए, और सभी लोग फ्री एंड फेयर रूप में खुले मैदान में आते हैं और अपने अपने एजेंडे का, अपने अपने पॉइंट्स का, अपने अपने स्टेटमेंट्स का प्रचार करते हैं. उसके हिसाब से जनता जिसको चीज़ समझती है वोट दे करके और गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि आप अपने मर्ज़ी से अपने सरकार का, अपने गवर्नमेंट का चुनाव कर सकते हैं. इंडिया की गवर्नमेंट लोगों के ही द्वारा वोट करने से चुनी जाती है, अपने मन से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं बनाता है. तो ये स्पेसिफिकेशन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमको दे देता है, और ये इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन है. उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को वर्क करना, गवर्नमेंट के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट की लिमिट, गवर्नमेंट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीज़ें इसी के बेसिस पे डिसाइड होती हैं. एंड नाउ द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, that constitution express the aspiration of the people about creating a good society. Okay, constitution is our hope for creating a good society. Okay, because constitution provides us secularism, constitution provides us rule, it provides us equality, it provides us premiables and all things it's provided us. constitution हमें इंडिया में इक्वल होने का,
कास्ट, रिलीजन और बाकी चीज़ों के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन ना करने का, ये सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया हुआ है। आज रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, या लैंग्वेज के बेसिस पे कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई स्मॉलर नहीं, कोई बिगर नहीं है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वलिटी का चांस देता है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल, ओके। नो वन इज़ VIP एंड नो वन इज़ इन्फीरियर, नो वन इज़ सुपीरियर, नो वन इज़ इन्फीरियर। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल बराबर कर दिया तो हमें ग्रो करने का, हमें पैसा कमाने का, हमें अच्छा एजुकेशन लेने का इक्वल चांस सबको प्रोवाइड हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि सोसाइटी को एक होप देता है कि बेटर सोसाइटी, बेटर कंट्री का कंस्ट्रक्शन हो सके और सबको इक्वल होने का चांस मिल सके, सबको ग्रो करने का इक्वल चांस मिल सके। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज नीड फॉर laws. Okay students, how can we sure that each and every member of society, each and every people of society behaves in a same way, behaves in a gentle way? No one would like to abuse anyone, no one murder anyone, no one beat anyone. So how can we assure? Okay, there are bad people and good people, both are in society. In a society, good people are also there and bad people are also there. Helping people are also there and do not helping people is also there. So how can we assure? Who will take the guarantee and who will make sure that the weaker people, okay, the poor people should not be beaten, or poor and weaker people also get justice? Who will make sure that? Which governing body, which government part would like to make sure that? So for making sure it, for guarantee it, we need laws. Okay, that's why we have a law. We have a law system, and Constitution provides us the law system. We need law system for equality. We need law system for justice. We need law system for equality. We need law system for safe and secure society. We need law for the maintenance and for the evaporation, for the maintenance and for the regulation of our society. Following rules and regulation make life discipline. Okay, for example, while driving or walking on the road, we follow certain traffic rules. Ignoring traffic rules can lead to accident. Similarly, nations are also governed according to some certain rules and regulation. So that rule and regulation is called law. Is called rule, regulation or law. Okay, so it's our duty to follow all the law. It's our duty to have all the law, and not only to follow but to be expected also. अब इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। हमको लॉ चाहिए, लॉ बन गया, ठीक है। तो केवल लॉ चाहिए कहने से तो लॉ फॉलो होगा नहीं, उसके लिए लॉ के कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, कानून नियम कुछ बनाने पड़ेंगे। जब रूल नहीं होंगे तो फिर फॉलो करने का सवाल कहाँ से उठेगा? तो सबसे पहले हमको रूल फ्रेम करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे रूल फ्रेम किए हैं। ये सारे रूल्स हमें अच्छा सोसाइटी बनाने में, ग्रेट कंट्री बनाने में मदद करती हैं, और ख़ासकर डेमोक्रेटिक कंट्री में तो रूल रेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कुछ हमारे बेसिक फॉर्म में होते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म में होते हैं। तो रूल ऑफ लॉ जो है, ठीक है, वो डिमांड करता है लोगों से कि वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करें और ग्रेट कंट्री बनाने में, ग्रेट स्टेट बनाने में अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करें, ठीक है। अगर पीपल या जनता रूल को नहीं फॉलो करेगी तो एक सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाएगा, केओस होगा, ठीक है। जब लोग रूल ब्रेक करेंगे या रूल ब्रेक करने के दूसरे को इंस्पायर करेंगे तो वो एक प्रकार का न्यूसेंस वहाँ पे क्रिएट होता है, अराजकता क्रिएट होती है। इससे सोसाइटी की शांति भंग हो जाती है, पीसफुली आप नहीं रह पाएंगे, क्राइम रेट बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है, और कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे करके रुक जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अनलॉफुल हम ना हो, हम लॉफुल हो। हमारा जो मैनरिज्म हो, हमारा जो वर्किंग पैटर्न हो वो डिसिप्लिन हो और लॉ से जुड़ा हुआ हो। हम अनकंट्रोल होकर कोई वर्क ना करने पाए। हम जो भी वर्क करें अकॉर्डिंग टू द ऑनेस्टी, अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द रूल के अकॉर्डिंग हम करें। अच्छा, रूल ऑफ लॉ में ये भी लॉ बनाया गया है कि सभी लोग इक्वल हैं, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको बराबर का चांस दिया जाएगा,
ग्रो करने के लिए, वर्क करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, नौकरी करने के लिए। ठीक है, तो ये जितने मेजर्स हैं ये अडॉप्टेड किए गए हैं इसी, ताकि पनिशमेंट से बचने के लिए भी लोग रूल को फॉलो करें, लॉ को फॉलो करें और एक सिस्टमेटिक ढंग से सोसाइटी में रहें, सोसाइटी को एक मॉडर्न सोसाइटी और बेटर सोसाइटी बनाने में अपने अपने हिस्से से कंट्रीब्यूशन करें। ये तभी संभव होगा जब हम लॉ को रेस्पेक्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अब जब रूल बन गया, लॉ आ गया, तो अब लॉ को फॉलो कराने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो इंस्टीट्यूशन भी हमको दी है, जैसे पुलिस स्टेशंस हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, जुडिशरी हो गई। ये जो आपके हैं ये लॉ को फॉलो कराने में हेल्प करते हैं। अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसको पनिश करने का काम भी ये सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन हमारी करती है। इससे लॉ का जो लेजिटिमेसी होती है वो बरकरार रहती है, बनी रहती है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैलिडिटी यानी वैधता। रूल हमने बना दिया और रूल कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उस रूल का कोई इम्पोर्टेंस रहा नहीं, फिर वो रूल क्या यूजलेस है। तो वो यूजलेस ना रहे, उसका इम्पोर्टेंस बना रहे, इसके लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस स्थापित करनी पड़ी जो उसको केयर कर सके, उसको प्रोटेक्शन कर सके। अगर कोई किसी को मर्डर करता है या पीटता है या मारता है बिना मतलब के, तो फिर वो वहाँ पे जस्टिस वो व्यक्ति पा सके, वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सके, इसलिए किया गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, इसमें पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। इन केस ऑफ इनजस्टिस टू यू, इन केस ऑफ एनी रॉन्ग थिंग्स टू यू, सो यू आर फ्री टू गो टू पुलिस स्टेशन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट और लेवल और कोर्ट। ठीक है, एक आर्टिकल 17 है हमारे यहाँ, एक्ट 17 है, जो ये कहता है अनटचेबिलिटी को स्वीकार वो नहीं करता है। मतलब कि कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे हम इनके साथ नहीं खाएंगे, हम इनके साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे, ये हमसे छोटे हैं, हम इनसे ख़ानदानी रूप में बड़े हैं। तो ये सब चीज़ें पहले चलती थी, अब ऐसा नहीं है, इसको गैर कानूनी वैलिड कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पनिशमेंट किया जाएगा। रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे कोई किसी को कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। When India got their freedom in 1947, so after that the Prime Minister Jawaharlal Nehru has decided to form a constitution. So that's why a constituent assembly has been formed to draft and to write the constitution. Okay, so the constitution assembly was dominated by the leaders of freedom movement such as Dr. Rajendra Prasad, Bhimrao Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Maulana Azad, Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit, and many more members are there. Okay, so the first meeting of the Constituent Assembly, the first meeting of Constituent Assembly was done in 9 December 1946. Okay, Dr. Rajendra Prasad was elected the President of the Constituent Assembly, and he has given the responsibility to form a constitution, to frame a constitution. And Dr. B.R. Ambedkar was elected the chairman of drafting committee. The articles of the constitution में इंडिया के सोशल डिवीज़न को ध्यान में रखते हुए, लैंग्वेज कल्चर को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने के लिए कहे गए। तो भीमराव अम्बेडकर जो आपके चेयरमैन थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, यानी जो ड्राफ्ट यानी जो लिखना है संविधान, उसके वो कमेटी, वो आपके चेयरमैन थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे बनाया गया। बनाने के बाद से 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, वो केम इनटू, वो बन करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को वो लागू कर दिया गया। ठीक है, केम इनटू इफेक्ट, अपने इफेक्ट में वो आ गया। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे, बिकॉज ओनली फ्रॉम दैट वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसका विज़न क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? जो लीडर थे आपके फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने देख लिया था कि जो गरीब लोग थे, दबे कुचले वर्ग थे, सोशल डिविजन थे, दलित थे, ठीक है, तो उन लोगों को काफ़ी सारी सहूलतें देनी थी। इंडिविजुअल देना था, ह्यूमन राइट्स देना था, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना था, उनके भलाई के लिए काम करना था। तो इस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके लॉज, रूल्स, क्लॉजेस लिखे गए जो सबके हित में रहे और सबको बराबर का, सबको सुख का अवसर दें।
उसके बाद से सबसे लास्ट में जो हेडिंग आपका आता है वो आपका आता है प्रीमेबल। ठीक है, प्रीमेबल क्या है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पैराग्राफ है, जो पहली 6-7 लाइनें हैं, 6-7 लाइनें हैं, उनको प्रीमेबल कहा जाता है। ठीक है, वो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीमेबल है वो उसकी स्पिरिट यानी उसकी आत्मा मानी जाती है, यानी उसका मेन पार्ट माना जाता है। ठीक है, उसका एसेंस आप कह सकते हैं, उसका निचोड़ कह सकते हैं, उसको माना जाता है। अब प्रीमेबल में लिखा क्या हुआ है मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी का मतलब बंगाली, बिहारी, उड़ीसा, महाराष्ट्रियन, यूपी वाले सब उसमें मिल गए, वी। ठीक है, यानी एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में हमारा किया गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitution India into a sovereign, अब देखिएगा sovereign, into a sovereign socialist secular democratic republic and secure to its citizen। अब इतनी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई। सॉवरेन का मतलब क्या हुआ? सॉवरेन का मतलब हुआ कि पूरा यूनाइटेड हम रहें। ठीक है, अब भेदभाव ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, किसी रिलीजन को बहुत ऊंचा ना समझें, किसी को बहुत नीचा ना समझें। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि समाजवादी व्यवस्था, यानी सोसाइटी का हर एक छोटा से छोटा मेंबर भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी बन सकता है। ठीक है, सोसाइटी मजबूत हो, सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिले और लोग सोशल हों, एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल हों, कोऑर्डिनेटिव हों, कोऑपरेट करें, हेल्प करें। ठीक है, वो सोशलिस्ट हों। सेक्युलर हों, सेक्युलर का मतलब कि वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। ठीक है, यहाँ सभी रिलीजन के लोग, सभी लैंग्वेज के लोग रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, अपने अपने लैंग्वेज का, अपने अपने कल्चर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च बनवा सकते हैं। इस बात की उन्हें पूरी छूट रहेगी। डेमोक्रेटिक भी हम हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट को लोग चुने, लोग वोट करें और लोगों को अपनी पसंद का पीएम, अपनी पसंद का सीएम और गवर्नमेंट चुनने का पूरा क्रेडिट हो, पूरा हक हो। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जनता को सब पावर होता है, लोगों को ही पावर होता है। लोग चाहते हैं सरकार को गिरा देते हैं, लोग चाहते हैं सरकार को बना देते हैं। पूरी की पूरी पावर जनता में यानी कॉमन लोगों में ही होती है। उसके पास है रिपब्लिक। अब रिपब्लिकन सिस्टम क्या होता है? रिपब्लिकन का मतलब ये होता है कि छोटा से छोटा पर्सन भी उस कंट्री का बड़े से बड़े पोस्ट पे जा सकता है। यानी ये नहीं कि पीएम के लड़के हैं तो वो ही पीएम बनेंगे, बाकी कोई पीएम नहीं बनेगा। सीएम के बेटे हैं तो सीएम ही बनते जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय बेचने वाला, अखबार बेचने वाला, ठीक है, चपरासी की पोस्ट पूछे, घंटी बजाने वाला, कोई भी सिंपल पर्सन ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे गवर्नमेंट में जा सकता है। यानी राजा का लड़का राजा होगा, किंग का लड़का किंग होगा, ये ख़त्म कर दिया जाता है। उसी व्यवस्था को रिपब्लिक व्यवस्था कहा जाता है। तो अब देखिए, आपकी कंट्री सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। संसार के जितने बेटर, वर्ल्ड के जितने बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं वो सारे के सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। हम रिपब्लिक भी हैं, हम डेमोक्रेटिक भी हैं, सेक्युलर भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं और सॉवरेन भी हैं। सबसे बेस्ट और बेटर कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश का है। उसके बाद क्या लिखा है? सिटीजन जस्टिस। अब जस्टिस आपको किस प्रकार का दिया जा रहा है? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब गरीब बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, अमीर बहुत ज़्यादा गरीब ना होने में, ठीक है, उसमें इक्वलिटी हो। ऐसा नहीं कि आप जो कि झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं और किसी को मकान पर मकान बनवाने के लिए दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस व्यवस्था में सोशल जस्टिस आपको मेंटेन करना रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस में बर्थ के रेट पे, सेक्स, बर्थ, रेस, ठीक है, कलर, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि अगर लड़की है तो उसको कम पढ़ाया जाएगा, लड़का है उसको ज़्यादा पढ़ाया जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कोई भी आप इनजस्टिस आपको नहीं करना है। उसके बाद से इकोनॉमिकल, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि गैप बहुत ज़्यादा ना रहे, रिच के बीच और पुअर के बीच गैप बहुत ज़्यादा ना रहे, गैप को भरा जाए। यानी अमीर और अमीर होते ना चले जाएं और गरीब होते ना चला जाए, उनको बैलेंस किया जाए, ठीक है। उसके बाद से पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब हुआ कि जो भी आपका
स्टेट अफेयर्स में या कंट्री के अफेयर में सबका पॉलिटिकली इक्वल सभी लोग हो जाएं, ठीक है। यानी सबको पार्टी बनाने का, जस्टिस में आने का, पॉलिटिक्स में आने का, गवर्नमेंट में आने का, सबको बराबर का अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि बस केवल गवर्नमेंट करना या इलेक्शन जीतना केवल एक ही पार्टी के बस की बात हो जाए। छोटे से छोटा आदमी, छोटे लेवल का आदमी या छोटे कम पैसे वाला आदमी कोई पार्टी ना बना पाए या उसको वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने पाए या गवर्नमेंट ना बनाने पाए, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। सबको बराबर का राइट है कि वो पार्टी बनाएं, इलेक्शन लड़ें, जीतें और अपना काम करें, सबको दिया गया है। उसके बाद से इक्वलिटी, थॉट, एक्सप्रेशन, ब्रीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी, सबको इक्वल बनाया गया है। आप सोचने के लिए फ्री हैं, एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं, ठीक है। अपना विश्वास, वर्शिप, पूजा करने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए, जो अपने रिलीजन के बेसिस पे जो भी आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपके कस्टम्स एंड कल्चर्स हैं, उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितने बढ़िया तरीके से फ्रेम किया गया है। उसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाया है। सारे पॉइंट्स को, सारे एस्पेक्ट्स को, सारे कंडीशंस को, सारे पॉसिबिलिटीज़ को शॉर्टलिस्ट वहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो वर्किंग कल्चर के हिसाब से आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से गिना जाता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारे पावर देता है, बहुत सारे राइट्स देता है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। चैप्टर में क्या समझ में आया, क्या ना समझ में आया, ये आप कमेंट करके या लिख करके मुझे ज़रूर भेजें, ठीक है। और जहाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो पूरा देखें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।